Hello dear students of first year. Once again you are welcome in this online session of classes. So this is our third lecture of remedial mathematics in which we are studying second unit, that is matrices and determinants. In the previous two videos we have done various topics, and the last topic which we are doing was addition of matrices and subtraction of matrices. So in that particular series the next topic is multiplication of matrices. How we have to multiply two matrices. You may be thinking that as we were just adding the two matrices, as we were subtracting the two matrices, similarly we will go for multiplication of two matrices. It's not like that. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कुछ अलग से प्रोसीजर है, एक अलग से ऑर्डर है, ठीक है। सबसे पहले लेट अस सी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. I will not be writing on the board, I will be speaking that. If you can memorize it, it's very good, but if you are not able to memorize it, kindly note it down in your notebook for your reference, ठीक है। If you are having book, that's very good. If you are not having book, kindly note down the condition which I am going to just say right now. So two matrices, please listen very carefully as well as write it down. Two matrices can be multiplied only if the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. I will repeat. Two matrices can be multiplied only if the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of second matrix. Okay? ये कंडीशन का मतलब क्या है? Let us see one question. मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिसेस हैं. Let us say A is equals to एक A को मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है, and B also. Let us write down two matrices. A as 1 2 3. ये चलो आप ऐसा लिख लो 0 3 1 5 2 1 1 5 2 1, ठीक है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स, और B मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 2 3 2 3 4. I have just taken one example. I am questioning is asked to you that find AB. AB means A into B, ठीक है। आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा मैथ्स में XY, ठीक है। आप लोगों ने जनरली ऐसे देखा होगा XY का मतलब क्या होता है X into Y, ठीक है। So here you have to find AB means A into B, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर वो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर ध्यान रखना होता है। ऑर्डर मीन्स आप लोगों ने A into B फाइंड करना है कि B into A फाइंड करना है, दैट मैटर्स, बिकॉज लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट A into B is not at all equals to B into A. So अगर तो आप किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट मी स्पीक एन एग्जांपल, 2 3 is 6 and 3 2 is 6, मतलब अगर आप नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करें तो मल्टीप्लाई का आंसर तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि यू कैन से दैट बिकॉज व्हाट आर A and B ओवर हियर, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस, तो यहाँ पे A भी एक मैट्रिक्स है और B एक दूसरी मैट्रिक्स है, इट इज अनदर मैट्रिक्स. So A into B is not equals to B into A. We will be just seeing over here, ठीक है। ये चीज हम लोग अभी क्वेश्चन में देखेंगे, क्यों? क्योंकि सर देखिए, अब जब आप लोग A into B फाइंड करते हैं, लिसन, A into B, A into B में A into B मतलब पहले A मैट्रिक्स लिख दो। A मैट्रिक्स क्या है आपके पास? 0 into 3 1 into 5 2 into 1 into B, ठीक है। B कौन सी मैट्रिक्स है? 1 2 3 2 3 4. अब देखो, अब हम लोगों ने सिर्फ से कंडीशन पढ़ी है, आप लोगों ने लिखी भी है कि दैट two matrices can be multiplied only if the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix, ठीक है। अभी देखिए तो चेक करते हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हमेशा मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, कभी ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि मल्टीप्लाई ना हो रहे हैं, ठीक है। सो यू हैव टू चेक इट आउट। सो अभी स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर क्या है, रोज कितनी है 3, तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रोज इनटू कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 इनटू 3, इसका 3 इनटू 2 नहीं है, रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितने हैं 3, ठीक है। सो कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कहां लिखा जाता है, ये वाली चीज शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ द रोज कौन सी होती है आगे, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए,
नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्यों आगे अगर सर देखा अगर आप a इंटू बी फाइंड कर रहे हैं ना तो a आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है और b आपकी सेकंड मैट्रिक्स है। लेकिन जब आप b इंटू a फाइंड करेंगे तो b आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगी और a आपकी क्या हो जाएगी सेकंड मैट्रिक्स। इसीलिए वो ऑर्डर और रो सब कुछ बदल जाएगा, रोज कॉलम सब बदल जाएंगे, ठीक है ना जी। तो फिर आपका आंसर कुछ और आएगा। सो अभी ये सेम है तो दिस कैन बी मल्टीप्लाइड। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो यहाँ पे है ही नहीं। देखो अगर आप सोचो कि 0 का कॉरस्पॉन्डिंग 1, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग 2, तो इस 3 का तो कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। आई विल बी डूइंग ओनली 2 क्वेश्चंस बिकॉज आवर सिलेबस इज आल्सो वेरी वास्ट, वी हैव टू गो इन लिटिल बिट स्पीड। देखो यहाँ पे हम किस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले फर्स्ट रो की बात है, आपने इस फर्स्ट रो को ये जो लाइंस ड्रॉ करनी है ना फेयर में मत ड्रॉ कीजिए, अगर करनी है तो पेंसिल से ड्रॉ कर लो, ठीक है। फर्स्ट रो आपको आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। कैसे, देखो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, ठीक है। तो इनको फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और बीच में साइन आता है प्लस का, दैट मींस 0 into 1 plus 3 into 2, ठीक है। उसके बाद अभी आपने फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट कॉलम से, अब आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद फर्स्ट रो को ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी करना है, सेकंड कॉलम से भी करना है, थर्ड कॉलम से भी करना है, ठीक है। तो ध्यान से अभी सेकंड कॉलम की बारी, सेकंड कॉलम की बारी वैसे ही 0 को 2 से 0 into 2 प्लस बीच में हमेशा साइन कौन सा आता है मल्टीप्लाई में, प्लस करके प्लस 3 into 3। अभी सेकंड कॉलम की बारी खत्म, अभी थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, 0 into 3 प्लस 3 into 4, ओके। इस टाइप से अभी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया सब कॉलम से, अभी फर्स्ट रो का काम खत्म, फिर सेकंड रो की बारी। वैसे सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 into अभी फर्स्ट कॉलम से करना है सबसे पहले, तो 1 into 1 प्लस 5 into 2, फर्स्ट कॉलम का काम खत्म, सेकंड कॉलम से किसकी बारी चल रही है, सेकंड रो को, सेकंड रो को करना है तीनों से, तो जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 into 2 प्लस 5 into 3, उसके बाद थर्ड कॉलम से, ठीक है ना। तो थर्ड कॉलम से जब करेंगे तो 1 into 3 प्लस 5 into 4, ठीक है। सो उसके बाद अभी थर्ड रो की बारी, ठीक है। सिमिलरली थर्ड रो को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो चेक कीजिए कैसे यही है कि नहीं। 2 into 1 प्लस 1 into 2, सिमिलरली 2 into 2 जब सेकंड कॉलम से करेंगे तब 2 into 2 प्लस 1 into 3, फिर लास्ट में 2 into 3 प्लस 1 into 4, ये आपको क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 0 1 0 प्लस 6, ठीक है। आगे 0 प्लस 9, फिर 0 प्लस 12, ठीक है। फिर 1 1 1 प्लस 5 2 10, 2 1 2 मतलब 1 2 2 प्लस 15, 3 plus 20, then 2 plus 2, then 4 plus 3, then 6 plus 4, that will be equals to, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 plus 6 is 6, 9, then 12, okay, then it's 11, 17, 23, and last 4, 7 and 10. So this is your A into B. ये आपका क्या हो जाएगा, A into B. Yes, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स आएगा। फ्रेंड्स एक थोड़ा सा मैं आपको चेक बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि जो हमारी जो लास्ट में मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर क्या होगा। सर देखो ये जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना तो मैंने आपको बताया था कि ये 2 और 2 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इस 2 और 2 को के अलावा जो बचा है, देखो ये 2 और 2 क्या थे, सेम थे, तभी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हुए थे। अब इनको छोड़ के जो नंबर्स बचे हुए हैं, क्या बचा हुआ है, 3
इंटू 3। तो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स क्या आएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा। चेक करो वो ऑर्डर 3 इंटू 3 है क्या, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 3 इंटू 3। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। नंबर्स भी करेक्ट होने चाहिए, वो आप चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। सो दिस इज A इंटू B, ओके। Now to explain you further, let us do one more question of A into B. Take A into B के एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Let us change the matrices, ठीक है, matrices को चेंज कर देते हैं। वैल्यूज चेंज कर देते हैं। Let us say A is equals to 1 minus 1, 1 minus 1, 2, 3, और B एक मैट्रिक्स है। Let us say 2 1 1 0, 2 1 1 0, and you have to find A into B, ठीक है। A into B आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले आप लोग लिख लीजिए A into B। A क्या है, वैल्यूज पुट करो, 1 minus 1 2 3 इंटू डॉट लगा लो D, ठीक है, ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 1 0, चेक कीजिए क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, तो ये नंबर इस वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, तो वो सेम है 2 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। 1 इंटू 2 2, बीच में आएगा साइन प्लस का, माइनस 1, सुन मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 से 2 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, प्लस माइनस 1 इंटू 1, माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा, तो ऐसे करके ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों साइन आ रहे हैं। उसके बाद अब फर्स्ट कॉलम का काम खत्म, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 1 1, प्लस माइनस 1 इंटू 0, माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। सो अभी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करके अभी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे कॉलम से, दो ही कॉलम्स हैं, ठीक है। तो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, प्लस 3 1 3, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड कॉलम को 2 1 2। सो जैसे ऑर्डर में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लीज ऐसे ही कीजिएगा आप लोग। 3 0 0। अब इसको सॉल्व कर दो, कुछ नहीं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, सो 2 minus 1 1, 1 plus 0 1, 4 plus 3 7, and 2 plus 0 5। ये आपका क्या हो गया आंसर, दैट इज 2 सॉरी यस 1 1 7 wait ये क्या है 2 plus 0, sorry it's not 5 plus 0, it's 2 plus 0 which will be 2, so 1 1 7 2 is your answer of A into B, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया A into B। अब सुन देखिए एक और, दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू डू सो मेनी, 2 क्वेश्चंस वी हैव डन, दोस आर इनफ। अब सुन देखिए उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अभी क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, बाय अ स्केलर। इस टॉपिक, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है ना। हाँ जी, ये टॉपिक अब क्या है देखो, अगर आपने किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर क्वांटिटी से, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर, स्केलर का मतलब क्या होता है कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, सिंपल नंबर्स को क्या बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो अगर आपने किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड 2a प्लस 5b, क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला है 2a प्लस 5b, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपको 2a फाइंड करना है, फिर आपको 5b फाइंड करना है, और फिर उन दोनों को ऐड करना है, एंड देन यू हैव टू ऐड दोस टू मैट्रिसेस, व्हिच मैट्रिसेस 2a एंड 5b, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। दिस इज क्वेश्चन 2a का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यू हैव टू मल्टीप्लाई
2 बाय द मैट्रिक्स A, 1 minus 1 2 3। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से। अगर ये मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, दैट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी नंबर ऑफ द मैट्रिक्स बाय दिस नंबर। आप लोगों ने मैट्रिक्स के हर एक नंबर को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी 2 minus 2 2 2 4 and 2 3 6। ये आपका हो गया 2A। ठीक है, 2 को आपने क्या किया हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपको क्या फाइंड करना है 5, तो 5 भी फाइंड कर लीजिए। तो 5 into B, B क्या है 2 1 1 0, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक नंबर को 5 से। 5 2 से 10, 5 1 से 5, 5 1 से 5 and 5 0 से 0। फिर आप लोगों ने इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है। क्या फाइंड करना है 2A plus 5B। तो लिख दीजिए 2A कितना है, ये रहा 2A की वैल्यू आपने निकाली हुई है कितनी 2 minus 2 4 6 प्लस 5B। 5B कितना है, ये रहा, वैल्यू पुट कर दो 10 5 5 0। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए ऐड कर दो। ठीक है, सो 2 plus 10 12 minus 2 plus 5, तो मैंने सॉल्व करके है ना -2 plus 5 कितना आ जाएगा 3, 4 plus 5 9 and 6 plus 0 will give you 6। so 12 3 9 6 से आपका क्या हो जाएगा 2A plus 5B। ठीक है ना, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस टाइप से मल्टीप्लाई किया जाता है। फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन मैंने आपने बहुत असाइनमेंट में दिया गया था, ठीक है, कि इसमें आपको वेरीफाई करना था A plus B होल डैश। ठीक है, मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए थे उसमें ये चीज फाइंड करनी थी। देखिए A plus B होल डैश, शायद आपको स्टेप से कुछ करना था। A plus B होल डैश इज इक्वल्स टू A डैश प्लस B डैश। तो स्टूडेंट्स इसको धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सम स्टूडेंट्स हैव डन इट सो डायरेक्टली, आई डोंट नो वेदर दे हैव डन इट themselves or they have done from somewhere। if they have done themselves then it's very good, but please try to solve it in steps। ठीक है, उसको स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो A plus B होल डैश, जब आप लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, वेरीफाई का मतलब होता है you have to prove that। ठीक है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे तो डोंट डायरेक्टली ट्रांसपोज, पहले A plus B फाइंड कीजिए। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा मैथ्स को रिवाइज करो छोटी क्लासेस में। A ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है फिर ब्रैकेट के बाहर। तो पहले A plus B फाइंड करना, फिर A plus B फाइंड करने के बाद जो उसका आंसर आएगा A plus B का, उसको आप लोगों ने ट्रांसपोज करना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड को वहीं छोड़ दो, फिर राइट हैंड साइड फाइंड करो। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए A डैश, पहले A डैश निकालो, फिर B डैश निकालो और फिर इन दोनों को प्लस कर दो। तो फिर ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ रही है इनको चेक कीजिए क्या ये सेम है या नहीं। बिल्कुल 100% दे विल बी सेम। ठीक है, सिमिलरली माइनस में भी क्वेश्चन था, वो भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। ओके, transpose of a matrix I have told you in the previous video only। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स बिकॉज दिस बोथ टॉपिक्स आर इंटररिलेटेड। ठीक है, इस जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स है ना, वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स बिकॉज दिस टॉपिक व्हाई आई एम सेइंग दिस इज इंटररिलेटेड एंड दीस आर टू सेपरेट चैप्टर्स तो अलग अलग है लेकिन इंटररिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्लस 2 की मैथ्स की बुक देखो एनसीईआरटी की, तो चैप्टर नंबर 3 इज मैट्रिसेस एंड चैप्टर नंबर 4 इज डिटर्मिनेंट्स। तो इनके बहुत से टॉपिक्स, जब आप मैट्रिसेस की अच्छे से आपको नॉलेज पता चल जाएगी जो मैंने अभी आपको बताया, अगर ये सब कुछ आपको क्लियर है देन यू कैन वेरी इजीली स्टार्ट योर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ कुछ भी फाइंड करने के लिए ना मैथ्स में सब में कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है देन ओनली यू कैन फाइंड दिस। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स के लिए कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट जो है वो किसी मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है। डिटर्मिनेंट किसका फाइंड करते हैं, किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट इज फाइंड और इज ऑब्टेन्ड ओनली ऑफ दैट मैट्रिक्स व्हिच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मींस जो डिटर्मिनेंट है वो केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बोला जाए सो दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। वो क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो और ऐसे पूछेगा भी नहीं कभी क्वेश्चन में। ठीक है,
तो डिटर्मिनेंट हमेशा कौन से मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स कैसे कैसे हो सकती है? ऑफ ऑर्डर 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ना? हाँ जी। अभी देखो सबसे पहले हम 2 into 2, लेकिन आप लोगों ने इस सेशन में या फिर इस सब्जेक्ट में केवल 2 into 2 और 3 into 3 का ही ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 4 into 4 का नहीं करना है, ओनली 2 into 2 एंड 3 into 3। सबसे पहले एक मैट्रिक्स उठाते हैं A into A, ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से, मॉड, ठीक है? मॉड के अंदर पुट किया जाता है A को, ठीक है? अगर आपने किसी A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप उस A को मॉड के अंदर एनक्लोज कर दीजिए, दैट मींस A डिटर्मिनेंट। सिंपल A ले लेंगे तो दैट मींस मैट्रिक्स, लेकिन अगर इसको डिटर्मिनेंट में आप लोगों ने क्लोज कर दिया तो दैट इज, मतलब मॉड में क्लोज कर दिया तो दैट मींस इट इज द डिटर्मिनेंट। इसको बोलते हैं मॉड, मॉड्यूलस, ठीक है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, मॉड नहीं तो मॉड्यूलस एक ही बात है। सो दिस इज A डिटर्मिनेंट, ठीक है? या फिर डिटर्मिनेंट A या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A या A डिटर्मिनेंट, जो मर्जी बोलिए। सो डिटर्मिनेंट A, अब देखो मान लीजिए जैसे कोई, अब देखो, ठीक है? फिर से मैं बता रहा हूं मैट्रिक्स हम कैसे लिखते थे, जैसे मान लीजिए ये 2 1 3 4, ये कोई, लिसन, ये आपकी क्या थी? मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर रखा है सो दैट इज द मैट्रिक्स, लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट की जगह क्या है? इस टाइप से मॉड, मतलब स्ट्रेट लाइंस आप लोगों ने बनाई है, ठीक है? इस टाइप से ब्रैकेट नहीं बनाना, सिर्फ दो स्ट्रेट लाइंस, वर्टिकल लाइंस आप लोगों ने बनानी है, दैट इज नोन एज मॉड। उस दो स्ट्रेट लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड, कंप्लीट मॉड्यूलस, ठीक है? या तो मॉड्यूलस बोलो या फिर मॉड, शॉर्ट में मॉड बोलते हैं। सो मॉड के अंदर अगर ऐसा लिखा हो तो दैट इज नॉट मैट्रिक्स, दैट इज डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है? देखो अब सिर्फ आप लोगों को याद होगा शायद, I don't know whether you have studied it in deep or not, all this whether you have seen all the videos in detail or not. When I was telling about square matrix, then I was telling you, I was explaining you that in a square there used to be two diagonals. एक होता है प्रिंसिपल डायगोनल और एक होता है नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, दैट मींस डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2 into 4 और बीच में साइन आता है माइनस का डिटर्मिनेंट में, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है? काफी चीजें सिर्फ बेसिक कांसेप्ट्स हैं, इसको ध्यान रखना। मल्टीप्लाई में हम लोग प्लस रखते हैं, तो दिस इनटू दिस प्लस ऐसे करके, और डिटर्मिनेंट में माइनस, ठीक है? सो 2 into 4 minus 3 into 1, दैट इज 2 4s are 8 minus 3 1s are 3, so that is, ठीक है? दिस ये आपका हो जाएगा, ठीक है? माइनस। लेकिन पहले आपको सिर्फ ध्यान रखना, इसको आगे पीछे मत कर देना, पहले प्रिंसिपल डायगोनल के ही एलिमेंट्स आएंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लेट अस से इफ a is equals to, देखो मैंने मैट्रिक्स क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैंने यहां पे मॉड नहीं लगाया है, ठीक है? से इफ दिस इक्वल्स टू 4 minus 2 and 3, ये कोई आपका मैट्रिक्स है, आपको फाइंड करने की जरूरत है कि फाइंड a डिटरमिनेंट, मतलब a मैट्रिक्स का आपको क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है? सो व्हेन वी विल फाइंड a डिटरमिनेंट, तब आप इस मैट्रिक्स की जगह, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट की जगह क्या अप्लाई करेंगे? डिटरमिनेंट, क्योंकि आप लोग क्या फाइंड कर रहे हो? डिटरमिनेंट। तो 4 minus 2 3 minus 5 कैसे करेंगे? दिस इनटू दिस, तो 4 into minus 5, जो भी माइनस की वैल्यूज है ना उनको ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है? ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर बीच में फॉर्मूला मैंने क्या बताया? दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो माइनस 3 into minus 2, so 4 into minus 5, देखो इसका साइन क्या है? 4 का प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 4 into minus 5 कितना आ जाएगा? -20, अब माइनस माइनस प्लस। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है? साइन भी मल्टीप्लाई होता है और नंबर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 2 से 6 और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो प्लस आ गया बीच में, ठीक है? अब देखो माइनस प्लस, अब देखो माइनस प्लस में क्या होता है? माइनस, तो 20 minus 6 14, लेकिन साइन कौन सा आएगा? जो नंबर बिगर है उस नंबर का साइन आएगा। 20 इज अ बिगर नंबर, 20 इज अ ग्रेटर नंबर, और उसका साइन है नेगेटिव माइनस साइन, तो योर आंसर इज -14। ओके, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है? -17 -4 -3 एंड 0, या फिर -1, ठीक है? सारे वैल्यूज माइनस में लिख लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। सो मैंने क्या बताया? प्रिंसिपल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करो,
माइनस 17 ब्रैकेट में लिख लो इंटू -4, फिर साइन कौन सा आता है माइनस, तो ये फॉर्मूले का साइन है माइनस दिस इंटू दिस, तो अगेन -1 इंटू -3, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 17 4 72 is 28, ठीक है 28 के बराबर 56, ठीक है चेक कर लेना 17 4 से ये आ जाएगा कि नहीं, 7 into 4, wait no please wait, it's not 56, 34 68, it's 68, ठीक है 68 आ जाएगा, तो 7 4 से 28, या ऑफ कोर्स इट्स 68। देन अब देखो स्टूडेंट्स कितने साइन है माइनस में, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, या फिर देखो इन दोनों में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस आ गया और फिर एक और माइनस साइन है तो फिर प्लस माइनस माइनस, तीनों साइन को मल्टीप्लाई करने हैं, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो आएगा रेशियो माइनस का साइन और नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 3 का 3, सो योर आंसर विल बी 65, ठीक है, so 68 minus 3 that is 65। बहुत सारे एग्जांपल्स फ्रेंड्स आप अपनी मर्जी से लिख करके, ठीक है, आप मुझे चेक करने के लिए सेंड कर सकते हैं, सो फॉर योर प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस। उसके बाद 3 into 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट फाइंड किया जाता है, बट दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। काइंडली प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है ना, 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो ओके, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।